क्वेश्चन नंबर 15, पेज नंबर 333. यस, स्टार्ट. ओके, देखते हैं क्या लिखा है. व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? द सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ पराग. क्या लिखा ध्यान देना. द सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ पराग, Parag Limited, is 30,000 equity shares of rupees 100 each and 50,000 preference shares of 100 each. Okay, no issue. Two types of capital doesn't make any difference. मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता. आगे, ठीक है, आगे. Okay, आगे. On both of these shares, 80 per share were called up. 80 rupees is called up. Okay, good. Then the directors forfeited 500 equity shares held by Ashish, who failed to pay first and the second call of rupees 20 per share. Okay. They also forfeited 500 preference shares of Ashok, who failed to pay rupees 20 per share on allotment, rupees 20 per share on first call, and rupees 20 per share on the second call. कोई problem नहीं. The directors reissued these forfeited shares of Ashish at rupees 60 per share, rupees 80 paid up, and those of the Ashok at 72 per share, rupees 80 paid up. All reissued shares were taken by Anagha. Okay. लिखो. इक्विटी शेयर कैपिटल. अकाउंटिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता वो इक्विटी हो या प्रेफरेंस हो. ठीक है. ऑन एप्लीकेशन, on first call, on second call, and I think there is a balance on and balance. I don't know about balance. देखते हैं. What is my face value? What is my securities premium? What is my issue price? क्या लिखा है ध्यान देना. On both the shares 80 is called up. 80 is called up. 100 में से 80 rupees called up किए गए. Both shares of rupees 100 face value. Face value is 100. Issue price is also 100. Premium के बारे में कुछ लिखा नहीं. आगे. Directors forfeited 500 shares held by Ashish, equity shares, who failed to pay first and second call of 20 each. शायद यहाँ पे एक अलॉटमेंट हो सकता है जो मैंने लिखा नहीं है. Up to this 80 is called up. You are not called last 20 rupees. Balance you are not called. Balance you are not yet called. अभी तक आपने कॉल ही नहीं किया. उन्होंने बोला you are called up 80 rupees. So first call 20 rupees का है, second call 20 का है. मतलब
application allotment put together will be of 40. हो गया टोटल 100? यस। मतलब क्या हुआ जान देना, ये जो किसके शेयर से, अशोक ना, आशीष फेल टू पे first call and second call of rupees 20 each. So try to understand. Ashish, holder of 500 equity shares, failed to pay first call, second call of 20 each. He has paid you application allotment. आपने अभी तक कॉल ही नहीं किया, ठीक है। सिमिलरली प्रेफरेंस शेयर का क्या है देखते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देखते हैं क्या लिखा, ठीक से पढ़ना होगा आपको प्रेफरेंस के लिए। They also forfeited 500 preference shares of Ashok, who failed to pay allotment of 20. Allotment of 20. Okay. Then 20 का फर्स्ट कॉल, 20 का लास्ट कॉल. दिस इज ऑल्सो 80 पेड अप, मतलब बैलेंस इज 20 जो अभी तक किया ही नहीं आपने. यू कॉल्ड ओनली 80 राइट, सो एप्लीकेशन विल बी 20. ये जो अशोक है जिसके पास 500 प्रेफरेंस शेयर्स है, didn't paid you application, he paid you application but did not paid you allotment, first call and second call. मैंने चेंजेस गलत जगह पे किए, नो इश्यूज. इक्विटी में मैंने चेंजेस किए, कॉपी पेस्ट किया एंड माय चेंजेस वर इन इक्विटी. ओके, नो इश्यूज. मैं यहाँ पे करता बराबर. He didn't pay you allotment of 20, first call of 20, second call of 20. He paid you application of 20. Ashok. ये लिख लेना पहले एवरीवन, ये लिखो फिर क्वेश्चन समझ में आएगा जल्दी. 80 कॉल्ड अप है, मतलब आपने 20 मांगा ही नहीं है. ये समझ में आ गया तो क्या क्वेश्चन टाइम पास है. लिखो ठीक से. लिखो, होने के बाद यस लिखो सर, वी कैन मूव अहेड.
जल्दी करो, मतलब ध्यान देना, वी हैव कॉल्ड, कंपनी हैज कॉल्ड ओनली 80, लास्ट के 20 तो हमने मांगे नहीं, तो जो इक्विटी शेयर्स है उस पे शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल 20, लास्ट कॉल 20 पेड नहीं किया, 80 हमने कॉल किया, उसमें से उसने 20 पेड नहीं किया, मतलब 40 पेड किया, 40 पेड नहीं किया, मतलब 40 पेड हुआ है। सिमिलरली जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो भी 80 रुपीज कॉल्ड अप है, उसमें से अलॉटमेंट का 20, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल का 20, टोटल 60 रुपीज पेड नहीं हुए, मतलब उसने हमें राइट ओनली 20 रुपीज पेड किया। चलो रिडीम, अब क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, ले लो, लिखो यहाँ पे फॉर फीचर, मैं यहाँ पे लिखूंगा 500 इक्विटी शेयर्स ऑफ आशीष, 500 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ आशीष। जहां पे इक्विटी शेयर होता है यू हैव टू यूज द वर्ड इक्विटी शेयर कैपिटल, जहां पे प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वहां पे यू हैव टू यूज द वर्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसके सिवा बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, आगे फर्स्ट फॉरफीचर की एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एज द केस में बी अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम, इक्विटी और प्रेफरेंस हो, ये इवन डिबेंचर्स भी हो, सिक्योरिटीज प्रीमियम और सिक्योरिटीज प्रीमियम। टू calls in areas, टू forfeited shares account, इसके 500 शेयर्स पे 80 रुपीज कॉल्ड हुआ था इक्विटी पे, प्रीमियम कुछ भी कैंसिल करने का सवाल नहीं, एरियस में है ही नहीं कुछ, एरियस में है क्या, कुछ नहीं, दिस इज कॉल्ड अप, कैपिटल कॉल्ड अप। प्रीमियम कौन सा कैंसिल होता है, इन एरियस, और ये होता है फेस वैल्यू पेड अप। कॉल सीनियर्स कितने, 20 रुपीज, सॉरी कॉल सीनियर्स कितने, 20 + 20 40 रुपीज, 80 में से 40 एरियस में, therefore forfeit कितनी हुई, 40 पर शेयर। Let's forfeit 500 preference shares, preference share capital account debit, 500 पे 80 रुपीज कॉल्ड अप, प्रीमियम कैंसिलेशन कुछ नहीं है, एरियस में 60 रुपीज है, 20 रुपीज रिसीव है, ये फॉरफीचर की एंट्री आ गई। इफ यू वांट टू स्प्लिट अप, आप इस कॉल इन रेस को स्प्लिट कर सकते हो, लाइक इस 40 रुपीज को आप स्प्लिट करके लिख सकते हो, क्या, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 20 टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल 20, आप ऐसे लिख सकते हो, बट मैं वैसे लिखता नहीं, आप इस कॉल इन रेस को 60 रुपीज को स्प्लिट करके लिख सकते हो, कैसे, प्रेफरेंशियल टू प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट 20 टू प्रेफरेंशियल फर्स्ट कॉल 20 टू प्रेफरेंशियल सेकंड कॉल 20, उसी 60 को आप 3 इसमें लिख सकते हो, 2 2 2, कोई इशू नहीं। ठीक है, अब हम रीइश्यू करेंगे, लिखो रीइश्यू ऑफ शेयर्स टू अनदर, of Ashish, 500 shares, आशीष के पूरे शेयर्स इशू है, ये अशोक है, ऑफ अशोक 500 प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, ओके, बैंक अकाउंट डेबिट, if you give discount
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एज द केस may be, 2 securities premium or share premium as the case may be, and then gain on reissue. एंट्री वही forfeited shares account debit, 2 capital reserve account right. Let's see क्या हुआ, ठीक से पढ़ो. The directors issued these forfeited shares of आशीष. आशीष के कौन से थे? इक्विटी, जिन पे कितना फॉरफिट हुआ है 40. आशीष के शेयर्स पे कितना फॉरफिट हुआ है 40. देखो क्या हुआ, लिखा है the directors issued these forfeited shares of Ashish at ₹60 per share, ₹80 called up. हमने उसके 500 शेयर्स इशू किए at 60. हमने ₹20 का डिस्काउंट दिया. हमने ₹80 का कैपिटल कैंसिल किया था. देखो हमने ₹80 का कैपिटल कैंसिल किया था, तो अब ₹80 का कैपिटल फिर से लेके आ रहे. मतलब इससे आज ₹80 का कैपिटल मांगेंगे, फिर हम ₹20 का कैपिटल बाद में मांगेंगे. प्रीमियम है ही नहीं. कितना गेन हो गया इसके शेयर्स पे, कोई मुझे बोलेगा? आशीष के शेयर्स जब रीइश्यू हुए कितना गेन हुआ? एनीवन? जब आशीष के शेयर्स गेन हुए तो कितना, राइट, रीइश्यू 20, 40 फॉरफिट हुआ था, 20 यूज हुआ, तो अभी भी 20 का गेन है जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा. नेक्स्ट आगे क्या लिखा है पढ़ो. सिमिलरली अशोक के शेयर्स 72 पर शेयर ₹80 पेड अप. हमने इसके शेयर्स पे कितना कैपिटल कैंसिल किया था? 80. तो अब कितना बनाएंगे? 80 या 100 दोनों में से. फुल्ली पेड अप लिखा होगा तो 100 का कैपिटल बनेगा, अगर 80 लिखा होगा तो 80 का बनेगा. तो 80 का बन रहा है 500 पे 72. हमने इसको ₹8 का डिस्काउंट दिया, तो जितने का कैपिटल कैंसिल किया था ₹80 का, उतने का कैपिटल फिर से बन गया. बाद में ₹20 बाकी सबके साथ मांग लेंगे. इस पे कितना गेन हुआ है? इसके शेयर्स पे, इसके शेयर पे कितने का गेन हुआ बोलो? ₹12 का बराबर 12 माइनस 8, ₹12. चेक करो उनका, आपका आंसर सेम होना चाहिए. चेक करो, उनका गलत हो सकता है एक बार. ये फॉरफीचर की एंट्री आ गई. मैं वही बोल रहा हूं, हम इसको कॉल्सिंग एरियाज बोलते हैं. हम इसको कॉल्सिंग एरियाज बोलते हैं. 20, 20, 20, ₹60 कॉल्सिंग एरियाज में. या तो आप स्ट्रिट पर करके लिखो. उन्होंने एक साथ ही डाल दिया टोटल कैपिटल रिजर्व, ठीक है. उन्होंने यहाँ पे यूज किया है इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट, यहाँ पे यूज किया है प्रेफरेंस शेयर फॉरफीचर अकाउंट. एक्चुअली ऐसे कोई अकाउंट्स होते नहीं, इक्विटी शेयर फॉरफीचर, प्रेफरेंस शेयर फॉरफीचर. एक सिंपल अकाउंट होता है फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट. बट ठीक है, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली इक्विटी अलग है और प्रेफरेंस अलग है, प्रेफरेंस शेयर्स अलग है, तो आप यू कैन यूज इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, कोई इश्यू नहीं. ठीक है, थोड़ा प्रेजेंटेशन उनके जैसे कर रहा हूँ, इतना कुछ नहीं है कि वैसे होना चाहिए, नॉट नेसेसरी. आंसर इज सेम. इस पे 10,000 का गेन हुआ है, इस पे 600 का गेन हुआ है. 500 शेयर्स पे ₹20 एंड यहाँ पे 500 शेयर्स पे ₹12. आंसर वही है. ठीक है, आगे क्लियर है नहीं है? आगे अगर इक्विटी शेयर फॉरफिट होते हैं
तो यूज द वर्ड इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट. प्रेफरेंस शेयर फॉरफिट होते यू कैन यूज द अकाउंट हेड एज राइट. प्रेफरेंस शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, कोई फर्क नहीं पड़ता. आगे पहले क्या यूज करते थे वो लोग, देखो शेयर फॉरफीचर यूज कर रहे थे, वही मैं बोल रहा हूं. कोई स्पेसिफिक ऐसे लिखा नहीं है, दो अलग टाइप्स के शेयर्स हैं. इक्विटी की खाली क्वेश्चन है या खाली प्रेफरेंस का है, तो यूज द शेयर फॉरफीचर फॉरफिट शेयर्स अकाउंट. देखो वो उनको ही नहीं पता कौन से अकाउंट यूज करने होते, शेयर फॉरफीचर. आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. एक सेकंड. देखो दिस इज फॉरफीचर ऑफ द शेयर्स. क्या एंट्री लिखी है, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर्स टू कॉल्स इन एरियस. क्या एंट्री लिखी है, इफ प्रीमियम इज रिसीव्ड तो प्रीमियम कैंसिल नहीं होगा. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट और शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियस. कॉल्स इन एरियस इटसेल्फ इज द करेक्ट. देखो इफ प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड तो कैंसिल होगा. शेयर प्रीमियम और सिक्योरिटी प्रीमियम, कॉल्स इन एरियस टू फॉरफिटेड शेयर्स या शेयर फॉरफीचर. तो मैं जो यूज कर रहा हूं ना वो करेक्ट ही है. आगे नहीं, नेक्स्ट. सो कॉल्स इन एरियस इज करेक्ट, नो वन विल डिडक्ट योर मार्क्स. आगे क्वेश्चन नंबर 16 करना है. चलो क्वेश्चन नंबर 16 नेक्स्ट. बैलेंस शीट बनेगी भी नहीं. प्रीवियस क्वेश्चन कैसे बैलेंस शीट बनेगी, टैली भी कैसे होगी, बैलेंस शीट कब बनेगी. अरे पूरे ट्रांजैक्शन दिए होंगे ना, खाली फॉरफीचर और इश्यू के कैसे बैलेंस शीट बनाएगी. ठीक है, आगे बैलेंस शीट में सब शेयर्स रहेंगे, बाकी जो फॉरफिट नहीं वो भी रहेंगे ना. आगे ओनली फॉरफीचर इश्यू की बैलेंस शीट नहीं होती. जस्ट फॉरफीचर का क्वेश्चन है कि ये फॉरफिट करो और ये इश्यू करो, बाकी डिटेल्स नहीं दिए तो कैसे करेंगे आप. आगे राकेश लिमिटेड issued 2000 equity shares of rupees 100 each at a premium of rupees 20 each, payable as 1, 2, 3, 4. No issues. Applications were issued for 3000 shares. 2000 shares were allotted. The 2000 shares allotted to the applicants of 2400 shares. 2400 वालों को हमने 2000 शेयर्स अलॉट किए, मतलब 600 वालों को हमने 0 शेयर्स दिए. प्रो राटा अलॉटमेंट है, प्रो राटा अलॉटमेंट है और प्रीमियम भी है. द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स for 600 shares being refused and application money on these shares were refunded. Excess application money received was adjusted against the allotment. एकदम नॉर्मल है, कोई भी अभी तक ऐसी बड़ी बात नहीं है. All the money, all the amounts were duly received except Mr. Mandar, to whom 800 shares were allotted. Mandar failed to pay first and final call. You have to tell me, मंदार ने आपको कितना पेड किया. क्वेश्चन इज अ प्रो राटा अलॉटमेंट.
and he has failed to pay first and फाइनल कॉल, उसने आपको ये दो कॉल्स पेड नहीं किए, प्रोराटा अलॉटमेंट का क्वेश्चन है एंड उसने आपको एप्लीकेशन अलॉटमेंट तक सब पेड किया है, तो यू हैव टू टेल मी उसने आपको कितना पेड किया। आंख बंद करके बोल सकते हो सर उसने हमें टोटल 70 पेड किया, एप्लीकेशन के टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा 20 से ज्यादा, एप्लीकेशन के टाइम 20 से ज्यादा, अलॉटमेंट के टाइम 50 से कम, दोनों मिला के 70, दोनों मिला के 70। तो आंख बंद करके बोलो सर हमें कोई डरने की बात नहीं है, उसने हमें टोटल 70 पेड किया है, he has not paid us 50 is in arrears। My second question, will you cancel the premium? जब इसके शेयर्स फॉरफिट किए जाएंगे, will you cancel the premium? No, correct। So the amount to be transferred to forfeited shares behind each one share, एक शेयर के पीछे फॉरफिट शेयर्स में कितना ट्रांसफर करोगे, एक शेयर के पीछे फॉरफिटेड शेयर्स में कितना ट्रांसफर करोगे। ओके गुड, संजना वेंकट गुड। पर शेयर कितना फॉरफिट होगा, बाकी लोग ओके, राधिका गुड, श्रावणी करेक्ट, आरती करेक्ट गुड, अभिजीत करेक्ट, अपूर्वा रॉन्ग, आई डोंट नो व्हाई। फॉरफिटेड शेयर्स में कौन सी अमाउंट जाती है, फेस वैल्यू पेड अप, उसने आपको 70 पेड किया है, उसमें से 20 प्रीमियम है, 70 माइनस पेड इज 70 माइनस प्रीमियम पेड, 50 इज फेस वैल्यू पेड, सो अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू फॉरफिटेड शेयर्स इज 50। मुझे बोला आप कितने का डिस्काउंट दे सकते हो सामने वाले को, पर शेयर कितना डिस्काउंट दे सकते हो, पर शेयर कितना डिस्काउंट दे सकते हो। वेंकट रॉन्ग, आई डोंट नो क्या तेरा, तुझे किस लेवल का कंफ्यूजन है, गॉड ओनली नोज। ओके, जितना हमने फॉरफिट किया उतना हम डिस्काउंट दे सकते हैं, हम 50 रुपीज का मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं, देना नहीं देना हमारी मर्जी है। वी कैन गिव डिस्काउंट ऑफ ₹50 ईच, अगर 50 से कम डिस्काउंट देते हो दैट विल बी योर गेन, 50 का ही डिस्काउंट देते हो तो नो गेन। अगर आप पार पे इश्यू करते हो मतलब आपने ₹1 का भी डिस्काउंट नहीं दिया, 50 का 50 गेन होगा। अगर आप प्रीमियम पे इश्यू करते हो मतलब आपने डिस्काउंट कुछ नहीं दिया, 50 का 50 गेन होगा। आगे, his shares were forfeited and were reissued to Mr. Ketan as fully paid up at ₹80 per share। जब हमने रीइश्यू किया केतन को, तो केतन को कितने का डिस्काउंट दिया हमने, हम डिस्काउंट दे सकते 50 रुपीज का, हमने अमाउंट फॉरफिटेड इज 50 पर शेयर, हमने केतन को कितने का डिस्काउंट दिया है, केतन को रीइश्यू डिस्काउंट कितना है 20, अमाउंट फॉरफिटेड इज 50, रीइश्यू डिस्काउंट इज 20। तो कोई मुझे बोलेगा अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कितना होगा, अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कितना होगा 30 पर शेयर। इस क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है। जर्नलाइज द ट्रांजैक्शन, इसकी बैलेंस शीट भी करेंगे, लिखो एवरीवन विथ मी। फर्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 3000 is paid, 3000 applications paid, you received 20 rupees at the time of application। 2, share application, सर आपको इन डिटेल टेबल नहीं करोगे क्या, प्रोराटा अलॉटमेंट हमें एडजस्ट करना है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल एक ही कैटेगरी है, तो आप थोड़ा दिमाग लगा के ही कर सकते हो, कैसे ध्यान देना। Second, share application account,
3000 multiplied by 20. 2. Equity share capital. Equity share capital. This is 60,000. I think. हाँ 60,000. 2. इक्विटी शेयर कैपिटल 2000 शेयर्स के पीछे 20 रुपीज. 2. सिक्योरिटीज प्रीमियम और शेयर प्रीमियम 0. तो ये गया 40,000 कैपिटल में, प्रीमियम में गया 0. रिफंड कितना करना है टू बैंक? रिफंड 600 शेयर्स के पीछे का 20 रुपीज रिफंड करना है. 12,000 रिफंड होने वाला है. इसका मतलब टू अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट होने वाला है? टू शेयर अलॉटमेंट. शेयर अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट होने वाला है? द आंसर इज 8,000. चेक करो, देखो मेरी एंट्री. शेयर अलॉटमेंट में 8,000 एडजस्ट होने वाला है. शेयर अलॉटमेंट में 8,000 एडजस्ट होने वाला है. 60,000 रिसीव्ड, कैपिटल में 40,000 गए, 2,000 शेयर्स के पीछे 20 रुपीज, प्रीमियम में 0 रुपीज गए. बराबर. रिफंड 600 शेयर्स का रिफंड होना है. 600 का 20 रुपीज. तो ये मिसिंग फिगर मिल गई ना आपको अपने आप? नहीं तो टेबल देखो, बराबर मेरा आंसर है. ध्यान देना, टेबल आपको मेरा टेबल दिखाता हूं मैं. यही आंसर आएगा. कभी कभी इफ यू स्टार्ट यूजिंग योर ब्रेन, बहुत सारी चीजें इजी लगने लगेगी. यू हैव द ब्रेन. जिनको पता नहीं है उनके लिए बोल रहा हूं. ओके, ध्यान देना. उनके लिए जिनको ऐसे समझ में आता है. सेकंड कॉल. क्वेश्चन में था एप्लीकेशन पे 20, अलॉटमेंट पे 50, 20, 30, टोटल 120. इसमें 20 रुपीज प्रीमियम है. मतलब ही यहाँ पे 20 होगा, यहाँ पे 30 होगा. 20, 30, 120. यस, टोटल हमने 2,400 शेयर्स वालों को 2,000 शेयर्स अलॉट किए. 600 वालों के हमने रिजेक्ट किए. टोटल होनी चाहिए 3,000. टोटल होनी चाहिए 6,000. नाउ ऐसे ही से सेकंड कॉल. at the rate of rupees 30, first call at the rate of rupees 20,
application money at the rate of 50 and application money at the rate of rupees 20. ध्यान देना। हमें 2400 शेयर्स पे we received 20, 600 shares पे we received 20, total we received 60,000. application money received is 60,000. application money received is 60,000. एक्चुअली चाहिए कितना था? 2000 पे 20, 40,000। यहाँ पे जीरो चाहिए था, टोटल 40,000 चाहिए था। कैपिटल में जाने वाला है 40। एक्सेस कितना है? 8,000 एक्सेस है। एक्सेस कितना है? 12,000। टोटल एक्सेस 20,000 है। अलॉटमेंट पे कितना चाहिए? 2,000 पे 50 रुपीज, 1 लाख चाहिए। यहाँ पे जीरो चाहिए। एडजस्ट कितना होने वाला है? 8,000। यहाँ पे एडजस्ट जीरो, टोटल एडजस्ट 8,000 होने वाला है। बैलेंस ड्यू कितना है? 1 लाख माइनस 8,000, 92,000। यहाँ पे बैलेंस ड्यू कुछ है नहीं। रिफंड कितना होने वाला है? जीरो, राइट। यहाँ पे रिफंड होने वाला है 12,000, टोटल 12,000 का रिफंड होने वाला है। फर्स्ट कॉल पे कितना ड्यू करने वाले हो? 2,000 के पीछे 20 रुपीज, टोटल 40,000। सेकंड कॉल के पीछे कितना ड्यू करने वाले हो? 2,000 के पीछे 30 रुपीज, 60। ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, वही तो मैंने बोला। फिर यहाँ पे आएगा कॉल सिनेरियस। किसके कॉल सिनेरियस है? मंदार फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मंदार 80 शेयर्स वर अलॉटेड, उसको 80 शेयर्स अलॉट किए थे, तो 80 से ज्यादा अप्लाई किए होंगे। 80 मल्टीप्लाई बाय 2,400 डिवाइडेड बाय 2,000, उसने 96 अप्लाई किए होंगे। अगर मैं कॉपी पेस्ट भी करता हूं ना, ये फॉर्मूला मेरा हर जगह हर चीज आ जाएगी। मुझे उससे एप्लीकेशन के टाइम टोटल कितना है देखो। उसने मुझे एप्लीकेशन टाइम 1920 दिया, उसमें से एप्लीकेशन का कैपिटल 1,600 में एडजस्ट हुआ। 320 जो एक्स्ट्रा है वो यहाँ पे एडजस्ट हुआ, और ही पेड मी 3,680। उसने अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट नहीं किया, ही पेड मी। उसने डिफॉल्ट इन दो जगह पे किया। Therefore कैश रिसीव्ड। हमेशा टेबल करने की भी जरूरत नहीं, अगर आपके थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर है तो। यहाँ पे 40,000 माइनस, ही वोंट गिव 1,600। 40,000 माइनस 60,000 माइनस 2,400, इतना नहीं आएगा। सो दिस इज योर आंसर। अब आप देख सकते हो हाउ दिस 60,000 हैज बीन एडजस्टेड। कैपिटल के लिए 40,000 यूज हुआ, कैपिटल के लिए 40,000 यूज हुआ। देखो यहाँ पे 60,000 कैसे यूज हुआ, इस 60,000 को हमने कैसे यूज किया वो मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। इस 60 को हमने यहाँ पे यूज किया 40, यहाँ पे 8,000 अलॉटमेंट के लिए यूज किया, 12,000 हमने रिफंड किया। तो वही तो एंट्री मैंने लिखी है। नेक्स्ट आगे थर्ड, आई विल डिमांड शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट जो लिखना है लिखो। मैं 3,000 शेयर्स के पीछे अलॉटमेंट का 50 रुपीज मांगने जा रहा हूं, मतलब मैं 1,50,000 मांग रहा हूं शायद से।
टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ओके सॉरी, टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। 3000 शेयर्स के 3000 नहीं, गलत 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 2000, सॉरी सॉरी, 2000 के पीछे 2000 के पीछे कितने 50 मतलब 1 लाख। आई विल डिमांड 1 लाख, उसमें से 2000 के पीछे 30 का कैपिटल है, 2000 के पीछे 20 का प्रीमियम है, 60,000 कैपिटल 40,000 प्रीमियम, टोटल आई विल डिमांड 1 लाख। चाहिए तो यहाँ पे देखो, अलॉटमेंट मनी ड्यू इज 1 लाख। अगेन आई विल रिसीव द मनी बैंक अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट पे किसका एरियस नहीं है, किसी का एडवांस नहीं है, जितना चाहिए था उतना आ गया टू शेयर अलॉटमेंट। आप देख सकते हो मुझे पहले ही 8,000 क्रेडिट किया मैंने, यहाँ पे मैंने 1 लाख डेबिट किया है, तो मुझे टोटल 92,000 आनी चाहिए। आई शुड गेट 92,000 और आप देख सकते हो मुझे 92,000 आ चुके हैं, 92,000। नंबर 5 डिमांड फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। कितना 2000 शेयर्स के पीछे व्हाट इज माय फर्स्ट कॉल, माय फर्स्ट कॉल इज 20, दैट इज 40,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। सर जो कुछ भी है वो कैपिटल ही सर, प्रीमियम फर्स्ट कॉल में नहीं है। नंबर 6 ध्यान देना, नंबर 6 रिसीव द मनी बैंक अकाउंट डेबिट। एक्चुअली मुझे 2000 शेयर्स के पीछे 20 आना चाहिए, बट किसी के पास 80 शेयर्स है, मोहन के पास, मंदार के पास, उसने हमें दिया नहीं। 2000 माइनस 80, उसके पीछे मुझे 20 रुपीज आ गया। जो नहीं आया वो कॉल सी नहीं रहे से। टू शेयर फर्स्ट कॉल कितना रे, 2000 मल्टीप्लाई बाय 20, 40,000 में से किसी ने मुझे 1600 पेड नहीं किया, मतलब मुझे 38,400 मिला। आई रिसीव्ड 38,400, ले लो, आई रिसीव्ड 38,400, दिख रहा है 38,400, यस। नंबर 7 डिमांड फॉर लास्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट। मैं 2000 शेयर्स पे मैं लास्ट का 30 रुपीज मांग रहा हूं, लास्ट का 30 रुपीज है, देखो मतलब मैं टोटल 60,000 मांग रहा हूं। उसका बाइफर्केशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। सर 60 का 60 कैपिटल है, प्रीमियम फाइनल कॉल में है ही नहीं। नंबर 8 रिसीव द मनी बैंक अकाउंट डेबिट। वो 80 वाला डिफॉल्ट करना कंटिन्यू कर रहा है, सो उसके 2000 माइनस 80 के पीछे मुझे 30 रुपीज आ गए। उसने मुझे कॉल्स इन एरियाज में है मेरे 80 के पीछे 30 रुपीज। टू शेयर सेकंड कॉल कैंसिल हो गया। मैंने 2000 के पीछे 30 रुपीज डिमांड किए थे, मतलब कितने 60 में से मुझे 2400 आए नहीं, मतलब मुझे 57,600 आ गए।
लेट मी चेक 57,600 परफेक्ट 2,400 एरियाज। यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक किसी का डाउट है? प्लीज आस्क मी। किसी का डाउट है क्या? बोलो प्लीज। देखो फॉरफीचर इश्यू नहीं है तो भी चलेगा, चलो। नहीं सर हमें नहीं आता है, यहां तक तो करो, यहां तक तो करो। चलो जल्दी करो, होने के बाद यस लिखो सो दैट वी कैन मूव अहेड। अभी हमें फॉरफीचर इशू करना है, चलो जल्दी करो। शावनी क्या पूछ रही है? सर देन बैंक में अलॉटमेंट मनी ऐसे थोड़ी होता है 1840 पे आएगा। एडजस्ट कौन सा बोल रही है? कौन सा? ये कौन सा बोल रही है तू? कौन सा? कौन सा बोल रही है? क्या हुआ? फोर्थ एंट्री? अरे वो एडजस्टमेंट के बाद पैसे को कैसे, हाउ कैन यू से कि पर शेयर कितना आ गया? हाउ कैन यू से पर शेयर? आगे मैं हर जगह पे मल्टी ऐसे लिखता नहीं, जिधर मुझे 100% गारंटी में उधर ही लिखता हूं। यहाँ पे लिखा नहीं बिकॉज ये एडजस्ट हो क्या है, तो हाउ कैन यू से पर शेयर कितना आ गया? या आप ऐसे लिख सकते हो, ये 2000 मल्टीप्लाई बाय 4, यहाँ पे 4 रुपीज पहले आ चुका है, तो यहाँ पे 4 रुपीज कम आएगा, मतलब ये रहेगा 2000 मल्टीप्लाई बाय, ले लो कैलकुलेटर पे, 92,000 डिवाइड बाय 2000, वो 46 रहेगा। हो गए क्या 50? यहाँ पे 4 रुपीज आ गए, यहाँ पे 46, टोटल 50 हो गए। आगे अगर लिखना ही इतना है तो मतलब 4 रुपए पर शेयर पहले आया था, एक्सेस एप्लीकेशन मनी के टाइम ही 4 रुपए पर शेयर आया था। सो बाद में जब हम उनसे 50 रुपीज मांगे एक शेयर के पीछे, बोलेंगे 4 तो हमने आपको दे चुके हैं, अब हम आपको खाली 46 देंगे, तो दे हैव पेड अस 46। तो ऐसे पहले 4 रुपए एक्स्ट्रा है, बाद में 4 रुपए कम आ गए, ओवरऑल उसने हमें बराबर पेड किया है। आगे नंबर 9 फॉरफीचर इनपुट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। हम 80 शेयर्स के पीछे 100 रुपीज का कैपिटल कैंसिल करने जा रहे हैं, 8,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। एरियस में कुछ भी नहीं है, इन एरियस प्रीमियम एरियस में है ही नहीं। क्यों? बिकॉज प्रीमियम अलॉटमेंट के टाइम पेड हो चुका है। 2 कॉल्स इन एरियस। यू मे राइट, बट आप लिख नहीं सकते बिकॉज आपने यहाँ पे कौन सा अकाउंट यूज किया है। जब उसने आपको फर्स्ट कॉल का पेड नहीं किया तो आपने फर्स्ट कॉल को किस में ट्रांसफर किया है? अनपेड अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल, कॉल्स इन एरियस में। सेकंड कॉल का अनपेड अमाउंट किस में ट्रांसफर किया आपने? कॉल्स एरियस में। सो डोंट यूज टू फर्स्ट कॉल टू शेयर सेकंड कॉल। अगर आप यहाँ पे कॉल्स इन एरियस यूज नहीं करते तो तब यूज करो, बट मैंने आपको अभी दिखाया, दिस इज आल्सो करेक्ट, टेक्स्ट बुक में यही लिखा है एक्चुअल में। आगे टू कॉल्स इन एरियस, 80 शेयर्स के पीछे फर्स्ट कॉल का 20 एंड सेकंड कॉल का 30 एरियस में। फर्स्ट कॉल का 20 एंड सेकंड कॉल का 30 एरियस में, मतलब आई थिंक 80 के पीछे 40, 3,200 नहीं, 80 के पीछे 50, सॉरी 4,000 एरियस में। उसने हमें जो पेड किया है वो फॉरफिटेड शेयर्स या शेयर फॉरफीचर अकाउंट में गया है। जो भी यूज करो ठीक से यूज करो। उसने हमें टोटल एप्लीकेशन का एंड अलॉटमेंट का टोटल पेड किया है,
उसने आपको टोटल 70 पेड किया है, बट अमाउंट पेड टुवर्ड्स शेयर प्रीमियम इज नेवर ट्रांसफर्ड टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, ओनली टुवर्ड्स फेस वैल्यू ना। तो यहाँ पे लिखो राइट, फेस वैल्यू पेड, एप्लीकेशन के टाइम का 20, अलॉटमेंट का 34,000, ठीक है। नंबर 10, नंबर 10 रीइश्यू। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, कितना, कितने शेयर्स हम रेशो कर रहे हैं, पूरे के पूरे शेयर्स रेशो कर रहे हैं, कितने पे रेशो कर रहे हैं, राइट, फुल्ली पेड अप एट 80 each, 80 शेयर्स पे पीछे 80 रुपीज हम ले रहे हैं, 6,400। डिस्काउंट देने की बात आ रही है, फॉरफिटेड शेयर्स 80 के पीछे 20 रुपीज का डिस्काउंट, 1,600। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल fully paid up 100, 8,000। 2 securities premium 0, 11। gain on ratio forfeited shares account डेबिट, 80 शेयर्स के पीछे मैंने 50 फॉरफिट किया था, कितना फॉरफिट किया था 50, उसमें से मैंने 20 यूज किया, -20। 2 कैपिटल रिजर्व, लिखो, चेक करो उनका और हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं है, चेक करो। लिख लेना, इवन दो, नोट, even though question is of pro rata allotment, as shareholder has paid allotment money up to allotment money, overall he has paid application money of 20, and allotment money of rupees 50, that is rupees 7. Of that rupees 20 is towards premium. Therefore, amount transferred to forfeited shares is rupees 50 per share. आपको समझने के लिए, बाद में क्लिक होने के लिए, बाकी कुछ नहीं। आज समझेगा और कल फिर भूल जाओगे। अगर अप टू अलॉटमेंट किसी ने पेड किया है
अगर अप टू अलॉटमेंट किसी ने पेड किया है तो उसको फुल बेसिस पे अलॉटमेंट हुई हो या प्रोराटा बेसिस पे अलॉटमेंट हुई हो, उसने आपको अलॉटमेंट तक सब पेड किया, सो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आगे यहां पे इफ यू सी, मैं इस एंट्री को थोड़ा चेंज करके लिखता हूं। आई यूज कॉल्स इन एरियाज। मैं यहाँ पे 40,000 लिखता हूं। मैं कॉल फर्स्ट कॉल को कैंसिल कर देता हूं और मैं यहाँ पे कॉल्स इन एरियाज लिया होगा 1,600 का मैंने। सिमिलरली मैं इस एंट्री को भी थोड़ा अलग लिखता हूं। मैं यहाँ पे टोटल 60 ले लूंगा और मैंने 2,400 का कॉल्स इन एरियाज लिखा होगा। इट्स ऑल्सो करेक्ट, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, एंड देयरफॉर मेरे बुक्स में फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल क्लोज हुए होते हैं, उसकी जगह ली होती है कॉल्स इन एरियाज। ठीक है, आगे जो आपको अच्छे से आता है वो फॉलो करो। आगे देखो, if the company accept application money and allot the shares to the person, he becomes the shareholder and the shareholder is liable to pay the entire amount on the shares. In case he fails to pay allotment and calls held by him, the amount is known as the calls in arrears. The unpaid amount on allotment and calls may be kept in their respective accounts for the balance not received or may be transferred to new account, that is calls in arrears account. लिखा है कितना क्लियर? मे बी ट्रांसफर, जो अमाउंट अनपेड है उसी अकाउंट में रहने दो या उसको कॉल्स इन एरियस में ट्रांसफर करो। आई ट्रांसफर इट टू कॉल्स इन एरियस। द कॉल्स इन एरियस अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस which is shown as a deduction from the from the paid up capital on the liability side of the balance sheet. So वही लिखा है, उन्हें आपको दोनों ऑप्शन दिए, मे बी ट्रांसफर टू कॉल्स इन एरियस। सो मैं ये वाला ऑप्शन फॉलो करता हूं। ठीक है, आगे नेक्स्ट, हर जगह पे आपको वही मिलेगा, कॉल्स रिसीव्ड एडवांस। कंपनी में रिसीव कॉल्स इन एडवांस द अमाउंट पेड बाय द शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी बिफोर द पर्टिकुलर कॉल इज मेड इज कॉल्ड एज कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स जब एडवांस में आते हैं, अलॉटमेंट कभी एडवांस में कोई पे नहीं करता। आप बोलोगे सर एप्लीकेशन मनी एक्सेस है तो हम उसको अलॉटमेंट के लिए यूज करते हैं तो वो एडवांस नहीं आ गए क्या? नहीं नहीं, उसको कॉल्स इन एडवांस मत बोलो, दैट इज रॉन्ग इंटरप्रिटेशन इन दैट केस। जब फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल कोई आपको एडवांस में पे करता है, लाइक फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट के टाइम, सेकंड कॉल अलॉटमेंट के टाइम या फर्स्ट कॉल के टाइम, थर्ड कॉल या तो अलॉटमेंट के टाइम या फर्स्ट कॉल के टाइम या सेकंड कॉल के टाइम कोई आपको एडवांस में देता है, उसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस, राइट? इट इज द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। कॉल्स रिसीव्ड एडवांस इज लायबिलिटी एंड शुड बी ट्रांसफर्ड टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। इट इज एडजस्टेड विद द रिस्पेक्टिव कॉल इन द फ्यूचर। बाद में हम उसको डेबिट मारते रहते हैं, till then it is shown on the liability side. आगे सो हम जो कर रहे हैं 100% करेक्ट कर रहे हैं, सो देयर इज नो डाउट, नो वन विल डिडक्ट योर मार्क्स। सो अब देखो क्वेश्चन इजी लगने लगे होंगे टेक्स्ट बुक के। अनसॉल्व क्वेश्चंस में आ जाओ, अनसॉल्व में से क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था,
अच्छा इसकी बैलेंस शीट करनी है ना, चलो बैलेंस शीट करते हैं इसी क्वेश्चन की, करो बैलेंस शीट, प्रैक्टिस के लिए बैलेंस शीट। लेट्स स्टार्ट। शेयर कैपिटल अकाउंट या इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस होता है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। मैं कैसे बोलता हूँ ध्यान देना, इनर कॉलम में लिखना है इनर। टोटल मैंने 2000 शेयर्स इश्यू किए थे, उसमें से 80 शेयर्स फॉरफिट किए प्लस बाद में 80 शेयर्स री इश्यू किए। जानबूझ के ऐसे लिख रहा हूं तो बाद में पता चलेगा कितने शेयर्स इफेक्टिव है, 2000 पूरे के पूरे मल्टीप्लाई बाय 100 इंच। सो 2000 पे 100, 2 lakhs लेस कॉल्स इन एरियस, जितने भी कॉल्स इन एरियस से कैंसिल हो गए बिकॉज हमने शेयर्स फॉरफिट किए, इसलिए 2 lakhs। फिर लिखो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, उसमें जो बैलेंस रहता है वो, आई थिंक यू रीशूड ऑल द शेयर्स, वहां पे बैलेंस जीरो है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, कितने का प्रीमियम था देखो, यहां पे आप देख सकते हो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम इज 40,000। कैंसिल होता है फॉरफिचर के टाइम अगर है तो 0। सो क्रेडिट हुआ था 40,000, आपने प्रीमियम कॉर्ड किया था 40,000, उसमें से कुछ कैंसिल हुआ नहीं। रीइश्यू के टाइम प्रीमियम हो सकता है, रीइश्यू के टाइम प्रीमियम हो सकता है, नहीं है। सो 40,000 का प्रीमियम था, समझने के लिए लिख रहा हूं, -0 फॉरफिचर के टाइम +0 रीइश्यू के टाइम। आपके बैलेंस शीट में 40,000 का प्रीमियम नहीं, एग्जाम में आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको समझने के लिए लिख रहा हूं। इनर कॉलम जो है ना वो डिटेल्स। फिर कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व कब रहेगा, व्हेन यू रीइश्यू शेयर्स एंड देयर इज अ गेन। यस, कितने का गेन है, 2400। दिस इज गेन ऑन रीइश्यू। इतने लाइब्रेरी साइड पाएंगे, 2,42,400। उतना ही कैश और बैंक में बैलेंस होना चाहिए मैंडेटरी। मैं कैसे ढूंढता हूं ध्यान देना, मैं बोलता हूं टोटल कितने शेयर्स थे, 2000। 2000 में से 80 वालों ने मुझे 70 पेड किए, 120 में से 70 ही पेड किए, बाकी 1920 वालों ने मुझे 120 का 120 पेड किया। और बाद में जब मैंने 80 रीइश्यू किए तो उन्होंने मुझे 80 रुपीज पेड किए। मुझे किसने कितने पैसे दिए वो ढूंढ रहा हूं। 80 शेयर जो फॉरफिट किए उनके पीछे 70 रुपए आए थे, वो छोड़ के 1920 वालों ने मुझे टोटल 120 दिए, एंड इन्हीं 80 वालों ने बाद में मुझे, जब मैंने रीइश्यू किया मुझे 80 मिला। पहले मुझे उनसे 5,600 टोटल आए थे इंक्लूडिंग प्रीमियम, इनसे मुझे 2,30,400 आए पुट टुगेदर।
बाद में मुझे उनसे 6,400 आए. If you take the total, it is 2,42,400 with tallies. लिखो लिखो. नेक्स्ट, समझा या नहीं समझा? आगे नेक्स्ट. अब हमें क्वेश्चन करना है सम अनसॉल्व क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1 इज डन. क्वेश्चन नंबर 2 वाज होमवर्क, 3 वाज होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 4 वाज डन. क्वेश्चन नंबर 5. यस, क्या लिखा ध्यान देना. सुचेता कंपनी लिमिटेड इशूड ₹20 lakhs new capital divided into ₹100 equity shares at a premium of ₹20 per share payable as ₹10 on application, 40 on allotment and ₹10 premium. Allotment के टाइम प्रीमियम है. ₹50 on final call and ₹10 premium. अच्छा, ध्यान देना. Total number of shares issued. कोई मुझे बोलेगा कि व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड. टाइप कितने शेयर्स हमने इशू किए. टाइप इट. कितने नंबर ऑफ शेयर्स हमने इशू किए. यस, ₹20 lakhs का कैपिटल है डिवाइड बाय फेस वैल्यू ऑफ ए शेयर 100. Capital is always face value, that is 20,000 shares of ₹100 each. चलो, on application, on allotment, on first call. फेस वैल्यू कितनी है, प्रीमियम कितना है, इश्यू प्राइस कितना है. We know face value is 100, issue price is 20, total is 120. उन्होंने आपको बाइफर्केशन दिया है. 10 on application, ₹40 on allotment, 40 on allotment. आई थिंक इसमें ₹10 प्रीमियम है तो शायद से 30 है. नहीं, गलत. 40 + 10 is 50, ऐसे उनको बोलना है. आगे 50 + 10 is 60. हो गया टाइम.
दिस इज योर टेबल। ये टेबल समझ में आ गया? तो आगे करेंगे। उन्हें लिखा है, आपको उतने कॉमन सेंस होना चाहिए कि एप्लीकेशन पे टाइम 10 है, 40 एंड 10 प्रीमियम। तो या 40 अगर यहाँ पे 40 डालते तो 30 प्लस 10 हो जाएगा, यहाँ पे 50 डालते तो यहाँ पे 40 प्लस 10 हो जाएगा, तो टोटल 100 नहीं आएगी, मतलब कुछ तो गलत होगा। ठीक है, आगे। द इश्यू ऑफ ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 26,000 इक्विटी शेयर्स। It is oversubscribed to the extent of 26,000. Okay. The applications on 2,000 shares were sent. Letter of regret, उनके रिजेक्शन किया, and their application money was refunded. उनको रिटर्न कर दिया। हम 20,000 शेयर्स इश्यू कर रहे हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन टू द एक्सटेंट ऑफ 26,000 शेयर्स, मतलब टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 26,000 शेयर्स, मतलब 26 में से 2,000 वालों को हमने 0 शेयर्स इश्यू किए एंड 24,000 वालों को हमने 20,000 शेयर्स इश्यू किए। रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वर अलॉटेड शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस। ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड। सबने सब कुछ पेड किया है, फॉरफीचर नहीं है, कॉल्स इन एरियस नहीं, कॉल्स रिसीव्ड एडवांस नहीं है, रीइश्यू नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। चलो अपना टेबल, एवरीवन विथ मी। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। एकदम प्लेन क्वेश्चन है, खाली टेबल करना है, नथिंग एल्स। टेन 50 60 10 50 60 120 होना चाहिए, परफेक्ट। इसमें 10 रुपीज है, इसमें 10, ये 20 होना चाहिए, यस। ये 10 40 टोटल 50 हो गया, तो ये भी 50 होना चाहिए, 100। एप्लीकेशन पे 10 पर शेयर, अलॉटमेंट पे 50 पर शेयर एंड फर्स्ट कॉल पे 60 पर शेयर। एक्सेस एप्लीकेशन मनी कहां तक एडजस्ट करना है, कुछ लिखा है क्या? कुछ लिखा नहीं है। एक्सेस एप्लीकेशन मनी कहां तक यूज करना है, लिखा नहीं है। तो ऐसे केसेस में एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज एडजस्टेड अप टू अलॉटमेंट और रिफंड किया जाएगा, अगर बचेगा तो रिफंड किया जाएगा। हमने 24,000 वालों को 20,000 शेयर्स अलॉट किए, हमने 2,000 वालों को 0 शेयर्स, 2,000 शेयर्स के पीछे 0 शेयर्स अलॉट किए। टोटल एप्लीकेशंस इज 26,000 शेयर्स, टोटल एप्लीकेशंस इज फॉर 26,000 शेयर्स, उसमें से 20,000 अलॉट करने। ये समझा क्या? यस और नो? ये समझा क्या आपको? ओके, चलो आगे। रिसीव एप्लीकेशन मनी, प्रोराटा वालों ने 24 के पीछे दे गिव मी 10 रुपीज, दे गिव मी 2,40,000। उन्होंने मुझे 2,000 के पीछे 2 रुपीज, दे शुड हैव गिवन मी 20, उन्होंने मुझे 20 दिया था, टोटल मुझे 26,000 पे 10 रुपीज 2,60,000 आए। एक्चुअली मुझे मिलना चाहिए था 20 के पीछे 10, 2 लाख, और रिजेक्शन होने से मुझे 1 रुपए भी नहीं चाहिए था, तो मुझे 20,000 शेयर्स के पीछे 10 रुपीज एक्चुअल में चाहिए था, 2 लाख। ठीक है, अब देखते हैं एक्सेस एप्लीकेशन मनी 40
20 टोटल 60, मुझे चाहिए थे 2 लाख, मुझे मिले 2,60,000, तो 60,000 टोटल एक्सेस है। अलॉटमेंट के टाइम नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट मनी, ये मेरा ड्यू है 1 लाख और यहाँ पे मेरा ड्यू है 0। एडजस्ट कितना करना है 40, यहाँ पे एडजस्ट कुछ होगा नहीं, टोटल 40,000 एडजस्ट होगा। तो मुझे 10 लाख में से अगर 40,000 एडजस्ट हुआ है तो 9,60,000 मुझे मिलने चाहिए। आई विल टेक 9,60,000। नहीं, रिफंड कितना करोगे 40 में से अगर 40 एडजस्ट होता है रिफंड कुछ नहीं होगा, यहाँ पे रिजेक्शन वालों का 20,000 रिफंड होगा। फर्स्ट कॉल के टाइम मैं 20,000 शेयर्स के पीछे आई विल डिमांड 60 रुपीज, मैं इनसे 0 रुपीज डिमांड करूंगा 12 लाख। सो ये जो 2,60,000 मिला है उसमें से 2 लाख एप्लीकेशन के टाइम एडजस्ट होगा, 40,000 अलॉटमेंट के टाइम एडजस्ट होगा एंड 20,000 रिफंड होगा, 20,000 रिफंड होगा। ठीक है, तो लिखो जिनको लिखना है, मेक इट फास्ट। आगे चलो, इंक्रीज जिनको हुआ है इंक्रीज लिखना स्टार्ट करो। चलो फर्स्ट, रिसीव एप्लीकेशन मनी, बैंक अकाउंट डेबिट, $2,60,000। 2, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, जो भी आप टेक्स्ट बुक में लिखते हैं लिखो। चलो उसको यूज करेंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 2, इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, 2 शेयर अलॉटमेंट, आप ट्रांसफर कर रहे हो शेयर अलॉटमेंट में, 2 शेयर फर्स्ट कॉल जो आप नहीं कर रहे हो बट करोगे तो, एंड इसके बाद अगर कुछ बचेगा तो रिफंड टू बैंक। ओके, 2,60,000 में से 2 लाख का 2 लाख कैपिटल है, ये जो 2 लाख एडजस्ट होने वाला है, ये 2 लाख जो एडजस्ट होने वाला है एप्लीकेशन के टाइम वो कैपिटल है, बिकॉज एप्लीकेशन के टाइम सब कैपिटल है, प्रीमियम में ही नहीं। अलॉटमेंट में एडजस्ट होने वाला है 40,
एंड रिफंड होने वाला है 20,000। हो गए इंटी डाली 2,60,000 की इंटी डाली। सो आज जो आपको 40,000 एक्स्ट्रा मिला है, कल जाके आपको उतना कम मिलेगा। थर्ड एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। I will demand entire 10 lakhs. 10 lakhs. 2. Equity share capital. 2. Share premium. 20,000 के पीछे 40 रुपीज का कैपिटल है एंड 10 रुपीज का प्रीमियम है। $8 लाख का कैपिटल है, 2 लाख का प्रीमियम है। हमने मांगे 10 लाख, बट उसमें से 40 पहले आ चुके हैं, तो अब यू विल रिसीव 9,60,000 बैंक अकाउंट में। सॉरी मैंने गलत लिखा है, ये बैंक नहीं है, वो शेयर अलॉटमेंट है, शेयर अलॉटमेंट। नेक्स्ट, ठीक है, आगे रिसीव द मनी बैंक अकाउंट डेबिट। मैंने मांगे 10 लाख है, बट मुझे पहले ही 40 आ चुके हैं, सो नाउ आई शुड रिसीव 9,60,000 और मुझे मिले भी है 9,60,000। किसी के एरियर्स में नहीं है, किसी के एडवांस नहीं है, टू शेयर अलॉटमेंट। $9,60,000। नंबर 5 now I will demand first call, share first call 60 रुपीज है। टोटल में कितना डिमांड करूंगा, मैं मांगूंगा 12 लाख। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 सेक्यूरिटीज प्रीमियम। 20,000 शेयर्स का 50 कैपिटल है, 10 रुपीज प्रीमियम है। 10 लाख का कैपिटल मांग रहा हूं, 2 लाख का प्रीमियम मांग रहा हूं। नंबर 6 रिसीव बैंक अकाउंट डेबिट। टू शेयर फर्स्ट कॉल, यू विल रिसीव एवरीथिंग। किसने एरियस में नहीं है, किसी का एडवांस भी नहीं था, इसलिए पूरा का पूरा मिलेगा। क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट है? हो गया आंसर। अगर टेबल समझ में आ गया, लिखो जल्दी, कॉपी पेस्ट वाले जल्दी करो। चलो, ये पहले के 2 एंट्रीज या 3 एंट्रीज लिखो, मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट। Unless and until you go and try, you will never get. यस प्लीज प्लीज, समझा ही नहीं समझा, यस और नो लिखो रे जल्दी। ये एकदम बेसिक क्वेश्चन था वैसे देखा जाए तो। गुड, आंसर उनका और हमारा आंसर सेम है क्या? क्या लिखा है उन्होंने? $40,000, $20,000, परफेक्ट। You have to try question number 6, question number 7 and question number 8 today. मैं कल तीनों क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, बट अगर आप खुद होके ट्राई करोगे तो आपको समझेगा
कि आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। 6, 7, 8 एक बार ट्राई करो। टुमारो वी विल कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8। चलेगा? अभी रुकते हैं हम लोग। मैंने क्या बोला आप लोगों को ध्यान देना, यू हैव टू ट्राई क्वेश्चन नंबर 6। करो ट्राई, गलत तो गलत मैं हूं, कल मैं सॉल्व करूंगा। 7 एंड 8 योर प्री बोर्ड्स टुमारो। अच्छा मेरा वाले क्या बेशलर, अच्छे से लिखो पेपर, ठीक है? एंड घर से पेपर लिखना है। वाडियास का क्या घर से पेपर लिखना है ना? देखो घर से लिखना है ना, ओके।